student, this is a part 2 of your biological classification. In the part 1 of your biological classification, I have already discussed about that what was the history behind the proposal of your 5 kingdom classification, and I have also discussed in very detail about your Monera kingdom. Okay, so in the part 2, I am going to discuss about your kingdom Protista, your kingdom Fungi, your kingdom this Plantae and the Animalia. Okay, so in the kingdom Protista, so what is the kingdom Protista and which are the animals which falls under your Protista kingdom? So it includes single cell यूकैरियोट्स. क्या इंक्लूड होता है बेटा? जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा होता है, इनमें बेसिकली आपके जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो आपके आते हैं. आपने मोनेरा में क्या देखा था? जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा. एक्सेप्ट योर मोनेरा, रेस्ट ऑल द 4 किंगडम्स आर कंसिस्ट ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल्स. यहाँ पे आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो यूनिसेलुलर है. Okay, then they are having well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Of course, they will be having the nucleus and other membrane-bound organelles. Why? Because they are the eukaryotic cells. Okay, then some have flagella or cilia. So, what do you understand by the flagella and cilia? Beta, can you see this structure, a thread-like structure? This is called as a flagella, and a hair-like projection. Like you can see here. So this is the cilia. Okay, a hair-like projection which helps in the movement of the animal or organisms and also works as a catching of your food particles is your flagella and the cilia. So जो आपके प्रोटिस्टा में एनिमल्स होते हैं वो आपके यूकैरियोट होते हैं एंड क्या होते हैं बेटा? सिंगल सेलुलर होते हैं. इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है एंड जो इनमें ऑर्गेनल्स रहते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ईदर दे आर हैविंग फ्लैजिला और सीलिया. ओके, सो प्रोटिस्टास आर प्राइमरली एक्वेटिक. दे आर ओनली फाउंड इन वाटर. ओके, it is a link with plants, animals and fungi. Reproduce asexually and sexually. What that does mean? बेटा, अब जो आपका प्रोटिस्टा होता है वो मोस्टली आपके एक्वेटिक में पाया जाता है. दूसरा जो आपका प्रोटिस्टा होता है it shows a link between your plant, animal and fungi. Why so? Because they are consist of eukaryotic cells. सो आपका प्रोटिस्टा को हम बोल सकते हैं कि ये जो इवोल्यूशनरी एक चेन होता है आपका प्रोटिस्टा वो शो करता है. प्रोटिस्टास आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन योर प्लांट्स, एनिमल्स एंड योर फंगाई. बेटा, प्रोटिस्टा कैन reproduce sexually and asexually by both the mechanism. Okay, then we can classify your protista in 5 categories. The first one is the chrysophyte, the second one is your dinoflagellates, the third one is the euglenoids and slime mold and protozoans. क्या है? आपके जो प्रोटिस्टास हैं, there are 5 types of your protistas. The first one is your chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and your protozoans. ये आपको बेटा नाम याद रखने पड़ेंगे. Okay, now I am going to discuss in big detail about all the 5 types of your protistas. Okay, so first we'll see about the cryophytes. अब cryophytes जो आपकी protistas हैं वो क्या होते हैं बेटा? Cryophytes are found in fresh water and marine environment. ये marine environment में भी पाए जा सकते हैं और आपके fresh water में भी पाए जा सकते हैं. Microscopic होते हैं, of course they are the protozoans. They are microscopic and float passively in water currents like planktons. बेटा, जो plankton है ये आपके chrysophytes होते हैं. Okay, most of them are photosynthetic. It includes diatoms and golden algae और desmids. जो आपके chrysophytes होते हैं they are the one of the type of your protistas. They are found in fresh water as well as marine environment. They can float passively in water like your planktons. Plankton is one of the example of your chrysophytes. Then we are having most of them are photosynthetic. जो आपके प्रोटिस्टास होते हैं ये आपके photosynthetic होते हैं, मतलब ये autotrophic होते हैं. They shows autotrophic mode of nutrition. Okay, the examples of your chrysophytes include diatoms,
golden algae और golden algae is sometimes called as desmids and आपके planktons भी होते हैं. Okay, so you have to, there is no shortcut to remember this. आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे. Okay, moving further. Now आपका पहला टाइप था क्राइसोफाइट्स और सेकेंड टाइप है दैट इज द डाइनोफ्लैजिलेट्स. बेटा डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब होता है टू फ्लैजिला. ओके, फ्लैजिला इज अ thread like structure which helps the organism from the for movement from one locomotion के लिए हेल्प करता है प्लस उसके प्रिडेशन के लिए भी उसको हेल्प करता है. सो मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. बेटा यहाँ पे आपका डाई का मतलब होता है, डाइनो मतलब टू एंड फ्लैजिला का मतलब आपके अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. वन लाइज longitudinally and the other transversely in a furrow between wall plates. अब क्या कहना चाह रहा है? अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वेल एंड गुड, आप ये भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा जो आपके जो दो फ्लैजिला होता है, एक होता है जो लॉन्गिट्यूडिनली होता है और एक होता है जो ट्रांसवर्सली होता है. मतलब अगर सपोज दिस इज योर, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. गोनिओलेक्स इसका एग्जांपल है. गोनिओलेक्स इज द एग्जांपल ऑफ योर डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटेस्ट और द प्रोटेस्टा. बेटा दिस एनिमल समथिंग लुक लाइक दिस. सो व्हाट हैपेंस, जो आपके दो फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला यहाँ से निकला होता है, एक फ्लैजिला आपके यहाँ बीज से निकला होता है. सो ये क्या करता है, उनके लोकोमोशन एंड उनके प्रेडेशन में हेल्प करता है. ओके, रेड डाइनोफ्लैजिलेट दैट इज द Goniolax undergo rapid multiplication so that the sea appears red or red tides. They release toxins that kill marine animals like fishes. अब ये लाइन में क्या है, जो आपके Goniolax डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनको हम रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं. बेटा आप अज्यूम कीजिए कि जो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स आपके प्रोटिस्ट होते हैं, ये बहुत रैपिडली क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जो जनरेशन को है बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं. और क्या करते हैं, एक पूरे एरिया में, आप सपोज कीजिए एक फ्रेश वाटर है या मराइन वाटर है, उस इन्वायरमेंट में इस पूरे एरिया में आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स है या आपके गोंगोलस है, और ये क्या करते हैं बेटा, दे अपीयर रेड इन कलर. सो ये पूरा वाटर जो है रेड हो जाता है. अगर सामने से कोई एनिमल अगर इन पे अटैक करना चाहता है तो ये क्या, न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं जो कि सामने वाले एनिमल के डायरेक्ट जाके ब्रेन पे क्या करता है, अटैक करता है एंड उनको पैरालिटिक अटैक दे सकता है, उनको डेड कर सकता है. ओके, सो जब ये अपनी संख्या, अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा रैपिडली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरे एरिया में बहुत सारे आपकी गोंगोलस हो जाते हैं, तो वो जो वहाँ की पानी होती है ना, इट्स लुक समथिंग लाइक रेड इन टाइप्स. सो इनको इस वजह से रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं. बेटा फॉर दैट रीजन आई हैव पेस्टेड अ फोटो हियर. यू कैन सी हियर व्हाट इज हैपनिंग. बेटा व्हाट इज हैपनिंग हियर, you can you see this region, this is region completely filled with the gongolus. Okay, so that is the reason, because there is n number of the gongolus present here that is making to turn the water red. Okay, so which causes a red tide. जब कोई भी एनिमल पे अटैक करता है, they immediately secrete the chemical that is a neurotoxin which attacks on the brain of the animal and that makes the animal paralytic or dead. Sometimes it can lead to the death of the animals. Okay, so that's how they protect themselves. Okay, moving forward, we are having the third type of protista, that is the euglenoids. Okay, so beta mainly they are freshwater organism found in stagnant water. Instead of cell wall they have a protein rich layer called pellicle. आपको पता है जो सेल वॉल होता है, मैंने पहले वाले पार्ट में भी बताया था, मोस्टली जो आपके सेल वॉल रहते हैं वो सेलुलोजिक रहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. बट जो यूग्लेनॉइड्स होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन रिच लेयर होता है, मतलब ये प्रोटीन से बना होता है जो कि कहलाता है पेलिकल. सो द सेल वॉल ऑफ अ यूग्लेना इज मेड अप ऑफ अ पेलिकल. इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी. दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन. कैन यू सी हियर, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट.
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर यूग्लिना. यूग्लिना क्या होता है आपका? It is a one of the type of your protistas. They are found in stagnant or the fresh water. They are having a cell wall which is made up of a pellicle, and they have two flagella, one long and one short, and they have the capacity to photosynthesize. Okay, then we are having euglenoids. They are photosynthetic. मैंने बताया. In the absence of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other organisms. The pigments are identical to those of higher plants. Example euglena. बेटा मैंने आपको बताया जो आपके यूग्लिना होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही नेचर शो करते हैं. अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सपोज कीजिए जहाँ द वाटर दे आर प्रेजेंट इन, इफ द सनलाइट इज पेनिट्रेटिंग, then they are able to photosynthesize. So what happens when the sunlight is not present? They predate on other animals for their food. In that condition they show their heterotrophic behavior. Okay, and their pigment are identical to those of the higher plants. Beta euglenoid अगर autotroph है, that means they are consist of chlorophyll. That is very obvious. So that is the reason, because अभी तक आपने क्या पढ़ा है, that chlorophyll is mostly present in the plants only, but euglenoid, that is a eukaryotic unicellular, they sometimes they also show the nature of your higher plants. Okay, that is the reason we call as the protistas as a your connecting link between your plant animals and the fungi. Okay, so please remember, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. यूग्लिना पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. क्यों? क्योंकि जो इसका नेचर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. मोस्टली ये प्रीडेटिंग होते हैं, बट आपका यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक होता है. ओके, अलॉन्ग विद ऑटोट्रॉफिक ये हेटरोट्रॉफिक भी होता है. सो ऑटोट्रॉफिक की वजह से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो एग्जाम पर्पज से आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए. फिर आपका जो फोर्थ टाइप था प्रोटिस्ट का, दैट वाज द स्लाइम. बेटा आपने ऐसा कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, ये आपके स्टोन जहाँ पे थोड़े स्वैम्प रीजन्स होते हैं, जहाँ पे थोड़ी ऐसे मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, मोस्टली आपके स्टोन रॉक वगैरह पे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे आपने फॉर्म जरूर देखा होगा. दे आर द स्लाइम मोल्स आर द सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं. द बॉडी मूव्स अलॉन्ग decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable condition, they form an aggregation that is called as plasmodium. It may spread over several feet. ये जो होता है बेटा, आपने रॉक पे देखा होगा, या कभी कभी ऐसे बड़े से जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, अगर वो डिके हो जाते हैं, अगर इफ दे फॉलन ऑन अ लैंड, सो व्हाट हैपेंस, with the help of their twig, they spread over that twig, that tree, and वो ऐसे पूरा एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. एंड सो बेटा जो आपके प्रोटिस्ट के अंदर जो फिफ्थ टाइप था वो प्रोटोजोअन है. ओके, सो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफ, दैट मीन्स दे आर द प्रेडेटर्स और पैरासिटिक. ओके, एंड जो आपके प्रोटोजोअन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल. इसका मतलब क्या है? दैट जो आपकी प्रोटोजोअन है ये इन लिंक कनेक्टिंग लिंक शेयर करते हैं एनिमल्स के साथ. दैट मीन्स दैट योर प्रोटोजोअन्स आर इवोल्यूशनरी. मतलब आप जो चेंजेस इवोल्यूशनरीज होते हैं, इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है वो शेयर करता है एनिमल के साथ आपका प्रोटोजोअन. अगेन वी आर हैविंग द four group of your protozoan, that is amoeboid protozoan and flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. ओके, पहला टाइप है आपका amoeboid, दूसरा है flagellated, तीसरा है ciliated एंड आपका चौथा है sporozoans. सो हम एक एक करके देखने वाले हैं. ओके, सी आपका जो अमीबॉइड, बेटा जो आप अमीबा सुनते आ रहे हैं ना इतने टाइम से, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, दैट मीन्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज देयर शेप, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फूड पार्टिकल्स अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग. अमीबॉइड का मतलब ये होता है जो अपने बॉडी के साइज शेप को बदल सकता है, अपने एडजस्ट कर सकता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उसे अमीबॉइड कहते हैं. ओके,
सो जो अमीबा होता है वो बेसिकली आपके जो अमीबॉइड ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स होता है उसकी कैटेगरी में आता है। सो जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं बेटा वो आपके दे लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ओके, इट कुड बी एक्वेटिक एंड आपके सॉइल में भी पाया जाता है। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट pseudopodia or false feet. That is the example of your amoeba. Marine forms have silica shell on their surface. Some are parasitic, that is एंटामीबा। इसका पूरा नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जिसकी कंटेंट अगर आपकी सॉइल या आपके जो वाटर आप ड्रिंक कर रहे हो उसमें अगर कंटामिनेशन है, if your that drinking water is contaminated with the entamoeba histolytica, then you get lose motion and the dysentery kind of thing. So जो आपके अमीबा होते हैं या एंटामीबा हिस्टोलिटिका होते हैं बेटा, ये अपने कैसे अपने प्रे को कैसे ये कैप्चर करते हैं, बाय फॉर्मिंग अ स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है द लेग और द फीट एंड द स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब फीट होता है। सो दीज आप इसे देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल अवेलेबल है तो ये क्या करेंगे, एक स्यूडो फॉर्म कर लेंगे, एक स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लेंगे एंड जैसे ही फूड पार्टिकल्स इसमें एंड दे मूव टुवर्ड्स द फूड। सो बेटा जैसे ही फूड की तरफ जाएंगे उसका खाना इसमें आ जाएगा एंड दे क्लोज दिस बाउंड्री। ओके, ये जो पोडिया बना है इसको क्लोज कर लेंगे एंड क्या करते हैं, आपके जो न्यूट्रिशन जो भी फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ कर रहे थे, उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद सिमिलर वे में क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है इसको क्या कर देते हैं, स्क्रीट आउट कर देते हैं और इट थ्रो आउट ऑफ इट्स बॉडी। ओके, एंड आपके एग्जाम्पल है ऑफ प्रोटोजोअन दैट इज योर अमीबा एंड एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अगर आपको एग्जाम में पूछे दैट explain define your amoeboid protozoan with two examples, so you can write about your amoeboid this two line and you can put the example of amoeba and entamoeba. Okay, so we'll now see flagellated. What is the flagellated protozoans beta? The meaning of your this group is itself suggesting that those protozoans which have the flagella present on them. So here फ्री लिविंग और द पैरासिटिक, जो आपकी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं बेटा, दे कुड बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, मतलब पानी में रह सकते हैं या किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट है या आपकी मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट रह रहे हैं तो फ्री लिविंग है, या समटाइम्स दे अकर इन द होस्ट बॉडी, सो दे शो द पैरासिटिक नेचर एज वेल। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है। पैरासिटिक फॉर्म्स causes diseases like sleeping sickness, that is trypanosoma। आपका एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है ट्रिपनोसोमा। अगर आपकी बॉडी में सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, these are the person who are suffering from your trypanosoma। ओके, सी व्हाट हैपन, एक फ्लाई होती है, ये फ्लाई क्या करती है बेटा, अगर दैट फ्लाई इज इन्फेक्टेड विद द ट्रिपनोसोमा देन ये होस्ट बॉडी में जाएगी बिकॉज दे आर द पैरासाइटिक एंड ये पर्सन की बॉडी में इन्फेक्ट करने के बाद उनको क्या कॉज करती है, इट कॉजेज अ स्लीपिंग सिकनेस एंड इसको पॉजिटिव एजेंट क्या है आपका ट्रिपनोसोमा। व्हाट इज ट्रिपनोसोमा? ट्रिपनोसोमा इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। सो अगर एग्जाम में पूछा आपके, अगर आपको याद रखना है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स आर फ्री लिविंग पैरासाइट्स, दे हैव फ्लैजिला एंड parasitic forms can cause sleeping sickness and the example is your trypanosoma. Okay, then we are having the next, that is your ciliated protozoans। बेटा ciliated आपने अमीबा, पैरामीशियम तो बहुत छोटे क्लासेस सुनते आ रहे हैं, राइट? सो पैरामीशियम इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर ciliated protozoan। अब सीलिएटेड का आपको मतलब पता होता है कि बॉडी पे ये जो सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम सीलिया बोलते हैं। यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे डायग्राम्स आपने जरूर देखे होंगे, राइट? एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया गया है। सो इट कुड बी एक्वेटिक, एक्टिवली मूव्स यूजिंग द सीलिया। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये सीलिया होता है ये इनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है।
they had cavity that is called as gullet. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनके gullet या gullet present होता है, that opens to outside due to the movement of cilia, water with food enters into the gullet. So जैसे आपने देखा कि जो आपके फ्लैजिलेटेड जो आपके प्रोटोजोवन था, जो आपका अमीबा था, वो क्या कर रहा था, बाय इट वाज कैप्चरिंग इट्स फूड बाय फॉर्मिंग अ स्यूडोपोडिया, राइट. बट इन द पैरामीशियम और द सीलिएटेड प्रोटोजोवन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके पास एक गलेट करके एक कैविटी होता है जो बाहर की तरफ खुलता है. सो क्या करता है बेटा, जो आपके वाटर फ्लो है, ऑफ कोर्स उसमें डायटम्स वगैरह होंगे जो उनके जो कि आपके पैरामीशियम के फूड है, वो जैसे ही उस वाटर फ्लो के साथ इनके गलेट में एंटर करते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से जो भी फूड रहता है that makes the source for their nutrition or their food. Okay, so this is how they takes the food, okay, by using their gullet, which is a cavity which opens the outside. Okay, and your example is paramecium. Okay, so आपका जो ciliated protozoan है उसका example क्या है बेटा, paramecium. अब आपने देख लिया ciliated. Now moving further, that is a sporozoan. स्पोर क्या बेटा, स्पोरोजोन्स का मतलब दैट जो आपके ये जो प्रोटिस्टास हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं, इनमें क्या रहेगा, जो इनका इन्फेक्शन वाला स्टेज रहेगा वो स्पोर के फॉर्म में रहेगा. ओके, दे हैव एन इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. स्पोरोजोन्स का मतलब ही है कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनका जो लाइफ साइकिल होता है, जो इन्फेक्शन वाला स्टेज आता है, वो बेसिकली उनके स्पोर फॉर्म में होता है. ओके, अगर मैं एग्जांपल देके बताऊँ तो आप तुरंत समझ जाएंगे. बेटा मलेरिया आप सब जानते हैं, राइट. आपको ये भी पता है कि मलेरिया कैसे कॉज होता है. बेटा मलेरिया कॉज होता है आपके मस्किटो से, राइट. अब देखिए, जो आपके प्लाज्मोडियम होते हैं, ये क्या होते हैं, एक मलेरियल पैरासाइट होता है जो क्या कॉज करता है, इट कॉजेज मलेरिया. सो जो स्पोरोजोन्स है उसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम. ओके, एंड व्हाट इट कॉजेज यू मलेरिया. एंड स्पोरोजोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो फेज में ये इन्फेक्शन कॉज करता है वो फेज इनका स्पोर स्टेज होता है. दैट इज द रीजन दीज प्रोटोजोन्स आर ऑल कॉल्ड एज योर स्पोरोजोन्स. ओके, सो ये आपकी एक स्पोरोजोन का एक स्ट्रक्चर है. ओके, प्लाज्मोडियम का एक स्ट्रक्चर है एंड ये इनका रिंग फॉर्म होता है. ओके, यहाँ पे आपके अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं. प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवोल. ओके, सो आपको एग्जाम में, आई होप आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे. एंड आपको ये फर्दर, अगर आप 12th के बाद भी, अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा. So after your kingdom Monera and kingdom Protista, we are going to study about the kingdom fungi. This is your third kingdom under the 5 kingdom classification by the R.H. Whitaker. So very first question arises that, ma'am, what is a fungi? Okay, so fungi is a multicellular eukaryotic, a plant look like organism. क्या है बेटा, जो आपका फंगाई होता है वो एक यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है एंड ये कुछ आपके प्लांट की तरह दिखता है. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो आपका प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, वेयर एज योर फंगाई डू नॉट फॉलो द ऑटोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे लैक ऑफ द क्लोरोफिल. जो आपका फंगाई होता है बेटा वो क्या होता है, वो आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, जबकि आपका जो प्लांट होता है वो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. बहुत टाइम क्या होता है, स्टूडेंट के कंफ्यूज बिटवीन एल्गे, बिटवीन द प्लांट एंड द फंगाई. एक्चुअली ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं. अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो एल्गी होता है वो थायलॉइड स्ट्रक्चर होता है, वो आपके हायर प्लांट्स का एक सबसे सिंपलेस्ट वर्जन होता है, जबकि आपका जो फंगाई है वो प्लांट जैसा दिखता तो है
मतलब आप उसकी बॉडी की पार्ट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। लाइक आप बता सकते हो दीज आर द ब्रांचेस, दीज आर द ट्रंक, दीज आर द रूट्स। ओके, एल्गे में ऐसा नहीं होता है, बट फंगाई जो होता है प्लांट के जैसा दिख तो रहा है, बट आप उनके उनमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसका मतलब ये है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड ऑन करते हैं, जबकि अपना प्लांट जो आपका प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बना सकता है। ओके, जो आपका फंगाई होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है, प्लांट के जैसा दिखता तो है, राइट, और यूकैरियोटिक भी होता है, प्लांट भी यूकैरियोटिक होता है, फंगाई भी यूकैरियोटिक होता है। आपका सिर्फ डिफरेंस इतना है कि फंगाई सेप्रोफाइटिक है और आपका जो प्लांट होता है वो क्या होता है बेटा, वो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। फंगाई जो है बेटा, इट इज अ प्लूरल टर्म फॉर द फंगस। ओके, फंगस का प्लूरल फॉर्म होता है आपका फंगाई, फंगस इज द सिंगुलर फॉर्म, फंगस FUNGUS। ओके, फंगस इज द सिंगुलर फॉर्म, whereas here the fungi is a plural form. So it is a unique kingdom of heterotrophic organism. Yes, it is. They are cosmopolitan. They are found everywhere. They could be terrestrial. They could be aquatic. They grow in warm and humid places. Okay, जो आपके फंगाई होते हैं वो मोस्टली थोड़े से वार्म रीजन एंड आपकी ह्यूमिड प्लेसेस पे ही ग्रो करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो ये आपके ब्रेड मोल्ड है, आपने बहुत नॉर्मल है, आपने कहीं न कहीं जरूर ये जो ब्रेड मोल्ड होता है इसे ऑब्जर्व किया होगा। ब्रेड मोल्ड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द फंगाई। देन वी आर हैविंग this orange rot, mushroom, toadstool, okay, then white spot on the mustard leaf। बेटा ये एक तरीके का डिजीज है जो आपकी मस्टर्ड लीफ पे क्या करता है, वो कॉज करता है। ओके, आपने ब्रेड मोल्ड तो बहुत कॉमनली अपने घर पे देखा होगा। अगर हम ब्रेड या कोई चपाती ओवरनाइट या 3-4 दिन के लिए छोड़ दे तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक स्लाइमी लेयर जम जाता है, राइट। वो आपका क्या होता है, वहां पे मॉइस्चर तो रहेगा ही। आप कोई सा कुछ भी खाना आप रात भर बना के रख दीजिए तो क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। सो वो किसकी वजह से बनती है बेटा, वो आपके फंगाई ग्रोथ हो जाता है। वो लेयर को अगर आप थोड़ा सा उसमें से स्पेसिमेन लेके माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे तो आपको पूरा ही फंगस जो उसमें स्पोर होंगे, उनके हाइफी होंगे, माइसेलियम होगा, वो क्लियरली विजिबल हो सकता है। ओके बेटा, मशरूम आपको पता है, मशरूम जो होता है वो एडिबल होता है। आप सबने कभी, हम बहुत रेगुलरली अपने घर पे खाते हैं, राइट, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। सो जो आपका मशरूम है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ योर फंगाई ओनली। ओके, अब तो आपको क्लियर हो गया कि फंगाई क्या होता है। मूविंग फर्दर, सो किंगडम फंगाई में आपके जो फंगाई होते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, दैट इज पेंसिलियम। आप पेंसिलियम जरूर सुने होंगे, इट इज अ टाइप, वन ऑफ द टाइप ऑफ योर एंटीबायोटिक्स, जो हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं बेटा आपके ईस्ट से। मैंने आपको बोला कि जो फंगाई होता है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बट आपकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे फंगाई हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट। जो आपका ईस्ट होता है बेटा वो क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ फंगाई बट इट इज अ यूनिसेलुलर। सम यूनिसेलुलर फंगाई, एग्जांपल योर ईस्ट, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड द बियर। Okay, and other fungi causes diseases in plants and animals. Example your wheat rust causing Puccinia. Okay, this is a disease which is caused by your wheat rust. Okay, so we are हमें सिर्फ जो आपकी फंगाई है, जैसे आपने मोनेरा के अंदर पढ़ा था कि बहुत सारे आपके ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, दोस आर गुड बैक्टीरिया, देयर आर सम बैक्टीरियाज व्हिच आर बैड बैक्टीरिया। सिमिलरली वी आर हैविंग द गुड फंगाई एंड द बैड फंगाई एज वेल। कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ईस्ट को हम फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा बेकरी में यूज करते हैं। अगर घर पे आपकी मम्मी कभी इडली बना रहे हैं या मेदू वड़ा बना रहे हैं, सो उसमें हम फर्मेंटेशन करने के लिए मोस्टली हम क्या यूज करते हैं बेटा, ईस्ट यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे भी फंगस हैं, कुछ ऐसे भी फंगाई हैं जो आपको डिजीजेस कॉज करते हैं। ओके, सो ना अब ये आपको ध्यान रखने की चीज है बेटा, एक्सेप्ट ईस्ट फंगाई आर फिलामेंटस, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। अब कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगाई, फंगाई कुछ कैसा दिखता है बेटा, फंगाई के कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको फंगाई इस तरीके से दिखेंगे। आपको दो चीजें याद रखने की जरूरत है, पहला है माइसेलियम एंड दूसरा है हाइफी। ये जो सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है ये क्या होता है बेटा, इसे हाइफी बोलते हैं। और ये जो इंटर कनेक्टेड लिंक्स हैं, ये जो आपके इंटरनोड्स होते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं? द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम। क्या है बेटा? जो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ आपका हाइफे है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये पूरा आपका क्या है बेटा? माइसेलियम है। एंड ये जो आपका जा रहा है सिलेंडर, वो आपका हाइफी कहलाता है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ आपका फंगाई ऐसा दिखेगा। Okay, now coming to the type of your hyphae. So we are having two type of a hyphae. One is sinusitic and second is septed hyphae. They जो आपका sinusitic है, ये क्या होता है बेटा? They are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. अब साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा होगा आपके 9th क्लास में। ओके, अब आप सबको पता है जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? ये एक फ्लूइड होता है जहाँ पे आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? जहाँ पे आपके सबके जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, सो आपके सीनोसेंट्रिक हाइफे वो होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस ट्यूब होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड जैसे आप ये देखेंगे ये कंटिन्यूएशन में है। एंड क्या है बेटा? अगर आप इसको देखेंगे ये क्या है? ये न्यूक्लियस है एंड दीज आर द साइटोप्लाज्म। एंड ये क्या है? कंटिन्यूएशन में जा रहा है ट्यूब। एंड ये किससे फिल्ड है? आपका साइटोप्लाज्म से। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीनोसेंट्रिक हाइफे बोलेंगे। सेप्टेड का मतलब क्या होता है? पोर्शन। अलग अलग सेप्टेड का मतलब पोर्शंस होते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे एक तो आपको बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट दिखने को मिल जाएगा। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेप्टेड हाइफे। दे हैव सेप्टेड और द क्रॉस वॉल फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड द पॉलीसेकेराइड। सी आपकी सिनोसेंट्रिक के अंदर क्या देखा बेटा? कंटिन्यूएशन में आपके साइटोप्लाज्म थे वो क्या थे? न्यूक्लियाई से फिल्ड अप थे। ओके, जहां पे आपके जो सेप्टेड है यहाँ पे पोर्शन है उसके अंदर आपके साइटोप्लाज्म है। हर रेस में एक साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपका एक ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये आपका क्या है बेटा? न्यूक्लियस है इसमें। और जो आपका सेल वॉल होता है फंगस का, ये जो आप सेल वॉल देख पा रहे हैं इसके ऊपर जो आपके सेल वॉल होते हैं वो किसके मेडअप होते हैं? वो काइटिन या पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। देन मोस्ट फंगाई आर सेप्रोफाइट्स, some are parasites, some live as a symbiotic example like in fungi, algae और mycorrhiza। बेटा कमिंग टू द, मैंने आपको पहले ही बताया जो आपका फंगाई होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है अनलाइक योर हायर ग्रीन प्लांट्स। ओके, सेप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है जो भी आपके डेड एनिमल या डेड प्लांट्स होते हैं उन पे जो फीड ऑन करते हैं या जो थ्राइव करते हैं for the nutrients, those animals or those organisms are called as saprophytic organism. So for example that is the one your fungi। Okay, बेटा आपके जो फंगाई होते हैं they could be parasitic in nature sometimes। Okay, वो कभी कभी parasitic भी हो सकते हैं। Then coming to the आपके आपने लाइकेंस जरूर कभी ना कभी सुना होगा। लाइकेंस क्या होता है? अब आपको एल्गे फंगाई प्लांट पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फंगाई का डेफिनेशन आपको पता है, एल्गे आपको पता है, आपको प्लांट पता है। ईस्ट आपका फंगाई का यूनिसेलुलर वर्जन होता है। अब ऐसा नहीं कि ईस्ट एक तरीके का आपका फंगाई है बट वो यूनिसेलुलर होता है। अब हम आ जाते हैं आपका कि लाइकेन, मैम लाइकेन क्या होता है बेटा? लाइकेन जो आपका एल्गे है, फंगाई है, when it is a condition of symbiotic association where your fungi and algae come together, okay, to form the lichens, and they are known as a great air purifier। जहां पे भी आपका ये, अगर आपको ये स्ट्रक्चर विजिबल हो अच्छे से, तो अगर आपने ऐसा कभी स्ट्रक्चर देखा होगा रॉक या कहीं ह्यूमिड रीजन में तो आपको ये लाइकेन जरूर कहीं ना कहीं दिखा होगा। इसमें क्या होता है बेटा? जो आपका फंगाई होता है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता बट इट कैन प्रोटेक्ट इट बॉडी फ्रॉम द यूवी रेज, वेयर एज द algae can photosynthesize but cannot protect from the UV rays। so in such condition दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। तो आपका जो फंगस होता है एंड जो आपका एल्गी होता है they come together and they stay together in the symbiotic association। such kind of association is called as symbiotic association and the association of fungi and algae are called as lichen। जहां पे भी आपके लाइकी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको लाइकी दिखे तो आपको समझ आना चाहिए कि उस जगह का जो एयर है वो काफी प्योरिफाइड है। दे आर द ग्रेट इंडिकेटर ऑफ योर इकोलॉजी। ओके, दे
Coming to the lichen, they play a very vital role in our ecology. Okay. Then again we are having the symbiotine, that is a mycorrhiza. बेटा mycorrhiza क्या होता है? Basically आपके एक टाइप का फंगाई होता है which forms a symbiotic association with the roots of higher plants. Okay. उसके बाद coming to the reproduction of the fungi, very important. So बेटा आपने अभी तक reproduction की मोनेरा में भी पढ़े थे, अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन आपके फंगाई में पढ़ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फंगाई के बारे में पढ़ रहे हैं कि विच आर द मोस्ट फॉलोड बाय योर फंगाई फॉर द रिप्रोडक्शन। सो बेटा रिप्रोडक्शन बाय द फंगाई आर ऑफ थ्री टाइप्स। वो कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन we are having asexual reproduction and the sexual reproduction. Beta again we are having fragmentation, fission, budding under the vegetative. Then we are having conidia, sporangiospores, zoospores under your sexual reproduction, and under the asexual reproduction. Then under the sexual reproduction we are having oospores, ascospores and basidospores. ओके सो आपको ये नाम, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जो कि बहुत इजी है। आपने पहले भी ये सब टाइप्स के रिप्रोडक्शन आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो आपको इस नाम याद रखने की जरूरत होगी। आपको मीनिंग पता है, राइट? हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्शन, अगर आपको नहीं बताया तो। सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, देखिए अगर ये आपका एक हाइफे है, सो दिस इज अ हाइफे। सो व्हाट हैपेंस, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है ये फ्रेगमेंटेशन फॉर्म कर लेते हैं, मतलब यहाँ से एक ब्रेक हो जाता है एंड जो आपकी ये एक हाइफे था, एक फंगस था, वो अब क्या हो गया, दो पोर्शन में डिवाइड हो गया एंड ये पूरा एक कंप्लीट आपका फंगस बना लेगा एंड ये आपका एक कंप्लीट फंगस बना लेगा। इस दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय योर फंगाई इज कॉल्ड एज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कमिंग टू द फिजन, बेटा फिजन में एक्चुअली क्या होता है, जो आपके ईस्ट का एग्जांपल मैंने लिया है, ईस्ट में बेसिकली आपके फिजन होता है एंड बडिंग होता है। अगर आप ये देख पा रहे हैं ये मदर सेल है, जब इनको डिविजन करना होता है तो सो व्हाट दे डू, बेटा बीच ये सेल है आपकी पूरी, अब इनको अपनी जो अंदर की जितने भी जेनेटिक मटेरियल है सब वो सबको क्या करना है, सेल ऑर्गेनिज्म को रेप्लिकेट करना है। तो ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करने के बाद इनके बीच में एक, ये तो पहले ऐसे ओपन होते हैं, फिर धीरे 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 क्या करते हैं, पास आते जाते हैं, और जैसे से पास आते जाते हैं इनके जेनेटिक मटेरियल भी डुप्लीकेटेड होते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं दो में। तो ये पहले ऐसे रहेंगे आपके, ये कंप्लीट सेल होता है, उसके बाद ये बीच में से फिजन होना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों अलग होने के बाद क्या होते हैं, ये आपका एक अलग ईस्ट है, ये आपके पास एक अलग ईस्ट है, दो आपके पास एक मदर से ईस्ट था एंड अब आपके पास क्या है, दो ईस्ट हो गया, दो डॉटर सेल हो गया, या दो डॉटर आपके पास ईस्ट हो गया, ये आपका एक अलग ईस्ट बन गया, ये आपका एक अलग ईस्ट बन गया। ऐसे टाइप की वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो आपके ईस्ट फॉलो करते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, फिजन बोलते हैं। ओके उसके बाद देखो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये आपका क्या है, यहाँ से आपका फिजन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे जब फिजन होके ये दो बन जाते, सेपरेट हो जाते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है बेटा, दो डॉटर सेल्स आ जाते हैं, ओके, या डिवाइडेड सेल्स आ जाते हैं। अब हम उसके बाद बेटा हमें क्या देखना है, बडिंग देखते हैं। देखिए बडिंग क्या होता है, एक छोटा बल्जिंग आउट ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ईस्ट इज कॉल्ड एज द बड। ओके देखो ये आपका एक मदर सेल है, अब इसको रिप्रोडक्शन करना है, मतलब बडिंग के थ्रू इसको रिप्रोड्यूस करना, तो ये क्या करेगा, एक छोटा सा यहाँ पे बडिंग कर देगा, बल्जिंग बना देगा एंड जैसे ही ये बल्जिंग बनेगा वहां पे आपका ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिप्लिकेशन जो भी रहेगा वो सिमिलर उसमें डिवाइड हो जाएगा एंड उसके बाद ये जो बड बना हुआ है ये मदर सेल से डिवाइड होके एक कंप्लीट क्या बना लेगा, आपका ईस्ट बना लेगा। ऐसे टाइप की आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम बडिंग बोलते हैं। ओके आई होप इट इज क्लियर। देन कमिंग टू द कॉनेडिया, बेटा कॉनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड द ज़ोस्पोर्स आपके क्या होते हैं, दीज आर द सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन अ फंगस। आपकी अगर कोनोडिया हुई बेटा, दीज आर द कोनेडिया एंड ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आपने पहले देखा वेजिटेटिव, इसमें क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये कोनेडिया होता है,
जो अगर स्पोरेंजियो, जो आपका ये स्पोरेंजियो, ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पेंजियो स्पोर्स बोलते हैं। उसके बाद बेटा आप इनको जो स्पोरेंजियम बोलते हैं। जो जू मतलब कहीं पे भी आके जाके अगर कोई सबस्ट्रेटम अटैच हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, एक कंप्लीट फंगस फॉर्म कर लेंगे। अगर आपका ये कोनेडिया है, ये एक सबस्ट्रेट पे जाके फॉल करेगा, हाइफी बनाएगा, उसके बाद पूरा एक कंप्लीट आपका फंगस बन जाएगा। सिमिलर वे में जो आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स है बेटा, जैसे ही सबस्ट्रेटम पे या आपकी ह्यूमिड रीजन में फॉल करेगा, वो क्या करेगा, एक पहले तो हाइफी बनाएगा एंड ये क्या वो एक कंप्लीट आपके फंगस में ग्रो कर जाएगा। सिमिलर वे में आपका ज़ोस्पोर भी होता है। सो अंडर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको याद रखना है कि आपको कोनाइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ोस्पोर्स के थ्रू क्या होता है, these are the sexual structure which are present on the fungus and which helps in the reproduction, okay, of the fungi. Now coming to the sexual reproduction, बेटा आप देखिए sexual reproduction में क्या होता है, आपको जरूरत पड़ती है बाई oospores, बाई ascospores एंड बाई द basidospores। ये भी आपके क्या है, जैसे आपने देखा कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ोस्पोर्स, वैसे ही वो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनके पास हमारे पास क्या है बेटा, ये 3 तरीकों से हो सकता है। पहला आपका या तो oospores हो सकते हैं, या आपका ascospores हो सकता है, या आपका basidospores हो सकता है। उसके बाद दे आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज। आपकी जितने भी फंगस होते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज होती है। इनमें क्या फॉर्म होता है, स्पोर्स फॉर्म होता है। जब इनको सबस्ट्रेट मिलता है ये जर्मिनेट होते हैं, माइसेलिया बनाते हैं। बेटा आपका जो माइसेलियम है उसका ही सिंगुलर फॉर्म आपका है माइसेलिया, ओके, माइसेलियम इज अ प्लूरल फॉर्म। उसके बाद ये इनका प्राइमोडियल होता है, फिर ये एक कंप्लीट आपका फ्रूटिंग बॉडीज में बन के एक कंप्लीट फंगस कहलाता है। Similar way में we are having the ascospores and similar way we are having the basidospores, okay। So ये आपका था बेटा sexual reproduction। Now coming to the sexual reproduction, बेटा ये 3 तरीके से हो सकता है। ये तो आपके क्या थे, अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ये आपके स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे। ये जो 3 है बेटा ये आपके क्या है, ये सेक्सुअल आपके स्ट्रक्चर होते हैं एंड ये आपके 3 क्या है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो था परसों वाला जो इससे पहले वाला था। अगर मैं बात करूं कि वो कौन से तरीके से, which are the methods they follow to reproduce by sexual method, so we are having again in the 3 ways, so they are having 3 steps for the sexual cycle। बेटा अगर आपका फ्रेगमेंटेशन बॉडी के पास से ही डिवाइड होके एक बन जाता है आपका, तो मदर सेल से ही आपके डॉटर सेल बन जाते हैं। असेक्सुअल में क्या होता है बेटा, अलग अलग आपके ज़ूस्पोर से स्पोर के फॉर्म है, वैसे आपके फंगस ग्रो कर रहे हैं। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं आपकी फंगस को। सो सेक्सुअल स्टेप में आपके 3 वो कौन कौन से हैं, पहला है बेटा प्लाज्मोगेमी, दूसरा है आपका कैरियोगेमी एंड थर्ड वन इज द मियोसिस। अगर देखिए कैरियोगेमी में क्या होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। जब आपके सेक्सुअल है 2 गैमेट की जरूरत पड़ेगी, मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी। आज वाले में कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं डालूंगा, ऐसे ही हट जाऊंगा, बंद कर दूंगा। कल वाला ऐसे ही शुरू गैमेट की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों को आज और कल वाले को ज्वाइन कर दो, जब दोनों का फ्यूजन होता है तो दूसरा चैप्टर कैरियोगेमी कहलाता है, और सॉरी प्लाज्मोगेमी कहलाता है। उसके बाद कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, मतलब अगर आपके पास 2 गैमेट है बेटा, ये आपके पास 2 गैमेट है, जिसके ये आपका न्यूक्लियस है, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपके ये अगर मैं फ्यूजन कराना हो तो कैसे कराऊंगी, ये कुछ इस तरीके से आपके फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो इट इज अ Karyogamy is the condition where the fusion of the 2 nuclei occurs. Then meiosis occurs in the zygote resulting in haploid spores। बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है माइटोसिस एंड मियोसिस, सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मियोसिस जो होता है आपका एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, ओके,
सो मियोसिस आपके मोस्टली गैमेट में ही पाए जाते हैं। जो आपका माइटोसिस होता है वो आपकी ग्रोइंग सेल्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो आपकी डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। ओके, सो अगर आप इस चार्ट से समझना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बेटा, आप अगर इस फ्लो चार्ट को समझ गए तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैरियोगेमी सबसे पहले क्या होगा बेटा, आपके पास हाइफे है। ओके, आपके पास हाइफे है, हाइफे में क्या है बेटा, स्पोर्स है, राइट। अब ये स्पोर्स क्या करेगा, आपका स्पोर्स सबसे पहले तो प्लाज्मोगेमी करेगा। आपके पास दो है, नहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। आपके पास क्या है बेटा, दो हेट्रोकैरियोटिक है। हेट्रोकैरियोटिक का मतलब यू आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर, मतलब दो अलग अलग गैमेट आपके पास प्रेजेंट है, या दो अलग अलग आपके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसीलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। अब क्या होगा, आपके पास हाइफे है बेटा, आपके पास क्या है, आपके पास हाइफे है, एक प्लस है एक माइनस है। अब आपके पास दो स्पोर्स आ गए। अब क्या होगा, ये दो स्पोर्स सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले जो इनके पास जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करने के बाद कैरियोगैमी करेंगे। कैरियोगैमी का मतलब होगा जो आपका न्यूक्लियस है, इसमें तो प्रोटोप्लाज्म हो गया, अब जो आपके अंदर न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस है तो ये आपका फ्यूज हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये फ्यूजन के बाद बेटा मियोसिस करने लगते हैं, मतलब आपके पास अब ये क्या है, आपका जो स्पोर्स है वो क्या हो चुका है, कैरियोगैमी हो चुका है, एंड इट कैन डिवाइड इनटू द मल्टीपल सेल्स। ओके, जो कि आपका फर्टिलाइज एग जैसे आप पढ़ते हैं ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह में पढ़ा होगा, जो जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब आपके पास क्या है बेटा, जाइगोट आ चुका है। अब आपके पास क्या है, ये डिप्लॉयड है। आपका जो स्पोर था यहाँ पे आपके पास हेप्लॉइड था बेटा, एन का मतलब क्या होता है, हेप्लॉइड, दैट मीन्स हाफ ऑफ नंबर ऑफ योर क्रोमोसोम। तो आपके पास दो गैमेट थे, ये भी एक हेप्लॉइड है, ये भी एक हेप्लॉइड है बेटा। जब आपका कैरियोगैमी हुआ है, जहाँ पे आपके न्यूक्लियस दो गैमेट के अलग अलग आए हैं, फ्यूजन किया है, तो आपका हाफ हेप्लॉइड, यहाँ से भी एक हेप्लॉइड आ रहा है, यहाँ से भी एक हेप्लॉइड आ रहा है, और ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, डिप्लॉइड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, एंड डिप्लॉइड फॉर्म करके क्या बन रहा है बेटा, आपका जाइगोट बनने के बाद इसमें आपका 2n होता है, एंड जब स्पोर आपका रहता है तो यहाँ पे आपको क्या होता है बेटा, आपका हेप्लॉइड होता है, जहाँ पे आपका हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ये जाइगोट बनने के बाद ये आपका साइकिल चलता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार मैं और समझा देती हूँ आपको। देखिए, हाइफे होता है, वहां पे स्पोर है, दो स्पोर्स आते हैं आपके, हेप्लॉइड हेप्लॉइड, दोनों का पहले प्लाज्मोगेमी होता है, मतलब दोनों का पहले फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, उसके बाद इनमें कैरियोगेमी होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, उसके बाद जाइगोट बनने के बाद क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, एंड मियोसिस होने के बाद फिर आपका ये फंगस बन जाता है। फिर फंगस जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो सेम साइकिल आपका रिपीट होता रहता है। ओके, इज दैट क्लियर? आपको ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, आपको कैरियोगेनी मियोसिस बना लेना है। इसके बाद बेटा यहाँ पे हेप्लॉइड है, क्यों हेप्लॉइड है, बिकॉज गैमेट्स है, यहाँ पे आपके हेप्लॉइड है, गैमेट है, तो ऑफ कोर्स उन्हें में हेप्लॉइड रहेगा, लेकिन जब आपका जाइगोट हो जाता है तो आपके डिप्लॉइड नंबर होते हैं। ओके, अब आपको ये, आई होप आपको समझ गया होगा। अब बेटा जो आपके फंगाई हैं, ये अगेन वी डिवाइड देम इनटू द थ्री टाइप्स। ओके, सो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, mode of spore formation and fruiting bodies, fungi are classified as follids. Okay, so on the basis of their morphology of mycelium, mode of spore formation and their fruiting bodies, fungi are classified as follows, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and the Deuteromycetes. See, how to remember this? Do you want me write down the mnemonics? So you can remember in the way, sorry, see. See.
how to remember this? So sorry. Phycomycetes, Ascomycetes, Basidomycetes, and Deuteromycetes. Okay, see, you have to learn the pronunciation first. थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो इजी टू रिमेम्बर है. देखो कैसे याद करेंगे. पुअर आर बिजी डॉक्टर्स. पुअर में जो पी स्टैंड कर रहा है बेटा, दैट इज फॉर द फाइकोमाइसिटीज. आर में जो आपका ए आ रहा है, दैट इज फॉर द एस्कोमाइसिटीज. बीजी में जो बी आ रहा है, दैट इज फॉर द बेसिडोमाइसिटीज. एंड डॉक्टर में जो डी आ रहा है आपका, दैट इज फॉर द ड्यूटेरोमाइसिटीज. सो पुअर आर बिजी डॉक्टर्स. ओके, पुअर में आपका फाइकोमाइसिटीज, देन आपका आर में एस्कोमाइसिटीज, देन बीजी में बी इज फॉर द बेसिडोमाइसिटीज, एंड डॉक्टर में आपको जो डी है दैट स्टैंड फॉर द ड्यूटेरोमाइसिटीज. इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. सो आपके माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, the mode of spore formation and the fruiting bodies, fungi are classified into these 4 types. Okay, ये आपके अलग अलग 4 टाइप्स अगर आपको दिख रहे होंगे इमेज में, तो ये आपके 4 टाइप के फंगाई होते हैं. अब बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके क्या डिफरेंशिएशन होता है. देखिए सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडीज. सो जो आपके फाइकोमाइसिटीज होते हैं, they are one of the lower fungi among all the 5 classification of your fungi. So the examples are, आप कैसे याद रखेंगे. देखो मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ. सबसे पहले जो फाइकोमाइसिटीज है वो लोअर फंगाई में आते हैं, जो एस्कोमाइसिटीज है वो सैक फंगाई में आते हैं. मतलब ये देखोगे आप, ये लोअर फंगाई है. ओके, ये आपके लोअर फंगाई है. ये जो आपके होते हैं ये सैक होता है बेटा. जो इनके स्पोर फॉर्मेशन होते हैं वो सैक के फॉर्म में होते हैं. जो क्लब फंगाई होते हैं, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये इनके जो होते हैं, जो आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स मैंने बताया था, ये क्या होता है बेटा, वो आपके क्लब फंगाई होते हैं. मतलब जो उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्लब के फॉर्म में होता है. देन वी आर हैविंग द फंगाई इम्परफेक्ट. आपका जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है वो इम्परफेक्ट फंगाई होता है और इम्परफेक्ट ही होता है. ओके, सो जो फाइकोमाइसिटीज है, इट इज अ लोअर फंगाई. देन वी आर हैविंग द एस्कोमाइसिटीज, इट इज अ सैक फंगाई. देन वी आर हैविंग द बेसिडोमाइसिटीज, दैट इज अ क्लब फंगाई. देन वी आर हैविंग अ ड्यूटेरोमाइसिटीज, दैट इज योर फंगाई इम्परफेक्ट. ओके, एंड दीज आर द एग्जांपल्स. सो फाइकोमाइसिटीज का आपका एग्जांपल है बेटा स्पोरेंजिला, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, फाइथियम. ओके, ये थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा. देखो मैं एक बार और वापस से बोलती हूँ. सेप्रोलेजिनिया, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो एंड फाइथियम. ओके, देन एस्कोमाइसिटीज में बेटा आपके इस्ट आते हैं, एस्परजिलस आते हैं, जो आपके पेनिसिलियम है वो आता है, न्यूरोस्पोरा आता है, एंड पेजिजिया होता है, पेजिजा. ओके, देन वी आर हैविंग द क्लब फंगाई. इसमें आपके एस्केरिस आता है, पॉलीपोरस आता है, यूसीनिया आता है, यूस्टिलागो आता है, एंड लाइकोपर्डॉन आता है. देन वी आर हैविंग द फंगाई imperfectly, that is सर्पोस्पोरा, colectrotrichum. Okay, then we are having trichoderma, then pyricularia and fusarium. ओके, सो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे एग्जाम्पल्स याद रखिए, बट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही चाहिए. अगर एग्जाम में डिफरेंशिएशन पूछ दिया मैंने, तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा कि फंगाई का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, उनके मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, उनके मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, एंड आपकी फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक लेके आपके फंगाई को क्या किया है बेटा, डिवाइड किया है या क्लासिफाइड किया है. तो आपके वो 4 टाइप के होते हैं. पुअर आर बिजी डॉक्टर्स. ओके, वो आपको याद रखना है. सो आपकी फाइकोमाइसिटीज है, आपके एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडोमाइसिटीज है, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज है. ओके, उसके बाद आपको लिखना है दैट फाइकोमाइसिटीज आर द लोअर फंगाई. देन वी आर हैविंग द एस्कोमाइसिटीज, दोस आर द सैक फंगाई. देन वी आर हैविंग द बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज आर द क्लब फंगाई. देन वी आर हैविंग द योर Deuteromycetes, that is your fungi imperfecti, and 2 examples you have to write down. It is very simple to remember, right? Then we'll see little structure of your Phycomycetes. Beta, they are the lower fungi. They occur in aquatic habitat. Okay,
and on the decaying wood in moist and damp places or as they obligate parasitic or plants. So जो आपके बेसिकली लोअर फंगाई होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं, मॉइस्ट होते हैं and damp places में पाए जाते हैं and they are the parasites on the plant. Okay, as of now we have seen about the kingdom Monera, Protista and fungi in very details. Now we are having the kingdom Plantae and Animalia. For that we are having a separate chapter dedicated to your plant, the kingdom Plantae and Animalia. So under this chapter it has not been given in very detail, so I'm not going to discuss about that, but rather than I will be discussing in your chapter 3 and the 4th. Okay, now after your all this 5 kingdom we are having some microorganisms which are not the part of your the 5 biological classification kingdom which was proposed by your R.H. Whittaker. And today we are going to discuss about what are the reasons that these animals are not included under that your 5 kingdom. Okay, so here we are having viruses, viroids, prions and the lichens. Okay, आपके जो viruses है, viroids है, prions and lichens है, what is the reason why they has not been included under this 5 kingdom? Okay, so first we are going to see about the viruses. See, आप लोगों ने viruses बहुत ज्यादा जरूर कभी ना कभी सुना होगा. So they are not mentioned in the 5 kingdom classification. Why so? So viruses, viroids, prions are non-cellular and not truly living, so they are not included in the classification. आपको पता है हमारे पास 5 क्लासिफिकेशन है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया. बेटा ये भी तो लिविंग थिंग में आते हैं, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अगर मेरे पास 5 किंगडम था तो मुझे इसी में किसी को अकोमोडेट कर देना था, बट हमने इनको अकोमोडेट क्यों नहीं किया है? रीजन क्या है कि आज तक जो आपकी वायरसेस हैं, जो आपके वायरस, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस हैं, इनको हमने कोई एक कैटेगरी क्यों नहीं प्रोवाइड किया है? सो वी आर गोइंग टू सी द रीजन. बिकॉज द रीजन इज जो आपकी वायरसेस एंड वायरस एंड प्रियॉन्स होते हैं बेटा, दे आर नॉन सेलुलर. मतलब इनकी बॉडी में कोई सेल नहीं, पूरी बॉडी इनकी किसी सेल की नहीं बनी होती है एंड दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. मतलब ये इनकम्प्लीट लिविंग होते हैं. कैरेक्टर शो तो करते हैं लिविंग जैसे, बट एक्चुअली में वो होते नहीं है. ओके, that is the reason that your viruses, viroids and the prions are not included in your 5 kingdom classification. Okay, now we are going to see in quite details about all these 4 terms. So what is a virus? Viruses have an inert crystalline structure outside the living cell. Viruses are obligate parasites. When they infect the cell, they take over the machinery of host cell to replicate themselves and killing the host. What does that mean? जब आपका जो वायरस होता है ये किसी सेल का नहीं बना होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए एंड आरएनए जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उनकी पूरी बॉडी बेटा सिर्फ डीएनए या आरएनए की ही बनी होती है. जो आप ये स्ट्रैंड देखते आते हैं ना, ये डीएनए और आरएनए का जो आपका स्टैंड होता है, जो आपका एक सिंगल स्टैंड होता है आरएनए का, सो इनकी बॉडी जो होती है वो सिर्फ एक आरएनए और डीएनए का बना होता है. एंड जब ये आपकी इन्वायरमेंट में फ्री होता है तो ये कैसा कैरेक्टर शो करता है? ये आपका नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है. जब इसको कोई होस्ट बॉडी मिल जाता है तो ये क्या करता है? होस्ट बॉडी के अंदर क्या करता है बेटा? एंटर करने के बाद जो उनके सेल रहता है उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद उनकी जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या उनकी मशीनरी को डिस्टर्ब करके उनको क्या कर लेता है? हाईजैक कर लेता है उनकी सेल को एंड अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ रेप्लिकेट करके वो एक लिविंग कैरेक्टर शो करता है. ओके, इस वजह से एंड जो आपका एंड ऐसे कंडीशन में क्या करता है, वो आपके जो सेल होते हैं, जो होस्ट बॉडी होता है उसके सेल को किल करता है, जो उनके एक्चुअल सेल होते हैं. सो वहां पे आपका जो वायरस होता है वो एक लिविंग कैरेक्टर शो कर रहा होता है. लेकिन जब वो होस्ट बॉडी के अंदर नहीं रहता है, जब वो इन्वायरमेंट में फ्री घूम रहा होता है, किसी सबस्ट्रेट पे अटैच है जो कि नॉन लिविंग है, सो क्या होगा? सपोज कीजिए कि अगर इस पे वायरसेस अटैच है तो वो क्या है? वो नॉन लिविंग फॉर्म में है.
ओके, तो स्टूडेंट जो आपका टर्म वायरस होता है उसका मतलब बेसिकली होता है कोई ऐसे वेनमस फ्लूइड और पॉइजन। ओके, सो वायरस जो टर्म होता है बेटा, इट वाज कॉइन्ड बाय द पर्सन, हिज नेम वाज लुइस पास्चर। ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में जब नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। सो जो लुइस पास्चर थे उन्होंने क्या किया था, जो आपका टर्म वायरस जो आता है उसका मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो पॉइजनस है या जो वेनम फ्लूइड होता है। ओके, देन हम थोड़ी सी डिस्कवरी पे चले जाते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं बेटा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वायरस खुद में एक बहुत ज्यादा आपका जो वायरस है इसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, इसी वजह से उसको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा हुआ है। सो वायरस की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना हमें जरूरी है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा कि who was the person who discovered the virus for the very first time? तो it was DJ इवानोव्स्की। ओके, इन्होंने क्या करा था बेटा, पहली बार आपके टीएमवी वायरस को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। टीएमवी वायरस क्या होता है बेटा, टोबैको मोज़ेक वायरसेस होता है। इसमें क्या हुआ था बेटा, ये आपका जो टोबैको होता है उसकी लीफ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था व्हाइट पैचेस व्हिच वाज कॉज्ड बाय द वायरसेस। ओके, वहां से इन्होंने क्या किया था, आपकी जो टर्म है इट वाज गिवन बाय द लुइस पास्चर, बट द डिस्कवरी ऑफ योर वायरस वाज गिवन बाय डिस्कवर्ड बाय योर डीजे इवानोव्स्की। ओके, and he proved that the bacteria were the smaller organism ever known, but after the bacteria we have something viruses which are smaller than the bacteria. ओके, सो जो आपके बैक्टीरिया है बेटा, अभी तक आपको क्या पता था कि जो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बट वायरस की डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि बैक्टीरिया से भी छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है, दैट इज योर वायरसेस। ओके, उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं एमडब्ल्यू बेजेरिंग। इनका क्या किया था इन्होंने, he demonstrated that the extent of the infected plants of tobacco could cause infections in healthy plant and called the fluid as contagium vivum fluidum, that is infectious living fluid। इन्होंने क्या देखा, जो आपके टीएमवी वायरस था, जो आपका टीएमवी जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, जिसने टोबैको को प्लांट को क्या करा था, पूरा इन्फेक्ट कर दिया था, उसे एक्सट्रैक्ट करके जो फ्लूइड मिला था हमें, हमने ये देखा कि वो अदर जो हेल्दी प्लांट है उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो इससे हमें पता चलता है कि वायरसेस आर वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्दी ऑर्गेनिजम्स और फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसके बाद वी आर हैविंग WM स्टानले। He showed that viruses could be crystallized and crystal consists largely of the protein. Okay, जो आपके बेसिकली वायरसेस होते हैं वो मोस्टली क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपके अब वायरसेस के व्हाट अ वायरस इज कंसिस्ट ऑफ। सो अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज इट हैज अ प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, एंड अ जेनेटिक मटेरियल, इट कुड बी आरएनए और डीएनए। जब आप वायरस के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आपको डीएनए एंड आरएनए याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा इसका, आप बहुत सिंपली इसको याद रख सकते हैं बेटा। ये आपका डीएनए हो गया एंड इसके ऊपर बेटा आपका एक कोट होता है प्रोटीन का जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ योर प्रोटीन एंड जो आपका इसके अंदर डीएनए है बेटा, ये तो मैंने डीएनए का बताया। आपका अगर डीएनए वायरस नहीं है तो आपका क्या हो सकता है, आरएनए बेस्ड वायरस भी हो सकता है। तो आरएनए आपका जो वायरस होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल दे आर कैरी। ओके, सो अगर डीएनए, अगर उसकी पूरी बॉडी जो अगर पूरी बॉडी उनके किसी डीएनए में है तो वो क्या कहलाएगा, डीएनए बेस्ड वायरसेस कहलाएगा। अगर उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आपके आरएनए बेस्ड वायरस कहलाएगा। जैसे बेटा आपने रिसेंटली कोविड देखा था, तो कोरोना वायरस क्या था, वो आपका आरएनए बेस्ड वायरस था। मतलब जो उनका जेनेटिक मटेरियल था वो आपका आरएनए का था। देखो आपने अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर की एक सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट। अभी तक तो आपने ऐसा पढ़ा था। एंड बहुत सारे सेल्स, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अमीबा अगर कोई एक सेल का बना है तो यूनिसेलुलर है, बहुत सारे सेल का बना है तो मल्टी सेलुलर है। लेकिन
जब हम बात कर रहे हैं वायरस की तो उनमें कोई सेल नहीं होता है, इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया नॉन सेलुलर होते हैं। इनकी सिर्फ बॉडी, पूरी इनकी बॉडी आरएनए या डीएनए की हो सकती है। जो डीएनए रहेगा उसके ऊपर एक कोट रहेगा प्रोटीन का जिसे हम कैप्सिड कहेंगे। ओके, एंड नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। मैंने आपको बताया या तो आपका जो वायरस है उसमें या तो बेटा आपका आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, वायरस में दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ओके, द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। अब जो आपका डीएनए या आरएनए रहेगा वो हाईली इन्फेक्शियस रहेगा, मतलब अगर वो होस्ट बॉडी में जाएगा तो उसे आपको पता है कि वायरस से हमें बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट plants have single strand RNA. Viruses that infect animals have either single or double stranded RNA or double stranded DNA. Bacteriophage, that is a virus that infect the bacteria, usually have double stranded DNA. अब बैक्टीरियोफाज एक नया टर्म आता है, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपके वायरसेस होते हैं ये सिर्फ एनिमल्स को नहीं बल्कि प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस कैन कॉज द डिजीजेस टू प्लांट एंड एनिमल्स बोथ। जो आपके प्लांट को कॉज करते हैं वो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं और जो आपके एनिमल्स को कॉज करते हैं वायरसेस वो मोस्टली आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आपके डीएनए हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक नया टर्म दैट इज बैक्टीरियोफाजिस। बेटा बैक्टीरियोफाजिस क्या होता है? आप ध्यान में रखिए कि मैम अब तो वायरस के अंदर बैक्टीरिया पढ़ाने लगे, नहीं। जो बैक्टीरियोफाज होता है इट इज अ टाइप ऑफ वायरस विच कैन इवन इन्फेक्ट टू द वायरसेस। बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज एक तरीके का ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। आपको पता है बैक्टीरिया से छोटा आपका वायरसेस है, वायरसेस से भी छोटा आपका बैक्टीरियोफेज होता है। एंड बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, फेज भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफाजेस होता है ये वो वायरस होते हैं विच कैन इवन इन्फेक्ट योर बैक्टीरिया। ओके, सो ऐसे वायरस है जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियोफाजेस बोलते हैं। द प्रोटीन कोड मैंने आपको बताया, जो आपके प्रोटीन कोट होते हैं बेटा, ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये शायद क्लियर नहीं हो पा रहा है बट स्टिल ये आप अंदर देख पा रहे हैं बेटा, ये पूरे ऐसे कॉइल्ड हो रखे हैं जो इनका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें आपका डीएनए है, ये बेटा आपका डीएनए है एंड डीएनए आपका अंदर है। इसके ऊपर ये आपको, मैं कलर चेंज कर, ये जो आपको दिख रहे हैं, शायद आपको कलर नहीं दिख रहा है, वेट लेट मी चेंज द कलर अपने। ओके, जो आपको ये दिख रहा है ना बेटा, ये जो कॉइल दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये आपका प्रोटीन का कोट है जिसे हमने कैप्सिड बोला है। ओके, सो द प्रोटीन कोट और कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट दैट इज द कैस्पोमियर प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड। अब जो इनकी पूरी बॉडी है वो डीएनए की बनी हुई है। अब इस डीएनए को प्रोटेक्शन की तो जरूरत है बेटा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोर्स हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। सो क्या हो जाएगा, आपके ये जो कोट होते हैं, ये कैप्सिड जो होता है ये आपके प्रोटीन का बना होता है जिसको हम कैस्पोमियर्स बोलते हैं। ये आपके न्यूक्लिक एसिड या आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। एंड जो आपके कैस्पोमियर्स होते हैं बेटा वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये जो आपके फॉर्म में, ये आपका अगर डीएनए है तो इसके ऊपर ऐसे कॉइल्ड या हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, एक फॉर्म में अरेंज है आपके कैस्पोमियर। ओके, उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं वायरसेस कॉजेज डिजीजेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ओके, ये तो आपके एनिमल्स के बारे में। या आपने देख बेटा स्मॉल पॉक्स बहुत सुना होगा आपने, वेरी कॉमन स्मॉल पॉक्स आपने जनरली सुना ही होगा, इन्फ्लुएंजा सुना होगा, हर्पिस सुना होगा, एड्स सुना होगा। ये सब क्या है आपका? ये सब these are the diseases which are caused by the viruses. Okay, now we'll see in the plants. The symptoms can be mosaic formation, leaf rolling or curling, yellowing and vein clearing, dwarfing or stunted growth.
बेटा ये डिजीज आपके एनिमल में कॉज होता है जो कि वायरस कॉज करता है, एंड ये सब सिम्टम्स होते हैं आपकी किसी भी प्लांट में अगर वायरस उसमें डिजीज कॉज कर रहा है तो आपके प्लांट का ग्रोथ रुक सकता है, जो उनके लीफ है वो रोल हो सकते हैं, और आपके जो लीफ होते हैं वो क्या हो सकते हैं, येलो पड़ सकता है, जो उनमें वेन होते हैं वो क्लियरली विजिबल हो सकते हैं। ये कुछ आपके सिम्टम्स होते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए वेदर द प्लांट इज हेल्दी और इट इज इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस। ओके, सो हियर आई हैव attached this figure as well. You can see this is the how the lumps look like. This is a smallpox, herpes, influenza, AIDS, and these are the symptoms which are caused by the viruses in the plants. Okay, now we'll move. These are some of the example of your viruses. So we are having TMV, that is a tuberculosis virus. Then we are having bacteriophage. We are having adenoviruses. We are having influenza viruses. Okay, and we are having bacteriophage typho. Now we see what is the viroids. अभी तक आपने क्या सुना था कि जो वायरसेस होते हैं दोज आर द स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. नाउ एक नया टर्म आ गया वायरॉइड्स. वायरॉइड्स एंड वायरसेस काफी सिमिलर है, राइट बेटा? आपको मैंने पढ़ाया कि जो वायरसेस होते हैं उनका जो बॉडी होती है वो तो या तो डीएनए की हो सकती है या आरएनए की हो सकती है, एंड ये दोनों को कॉज करता है डिजीजेस, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. वायरॉइड्स क्या होता है? वायरॉइड्स आर the infectious agent, but they are smaller than in size as compared to the viruses. बेटा लो molecular weight होता है as compared to the viruses, तो smaller size हो गया. एंड ये जो डिजीज होता है ये मोस्टली आपके प्लांट में कॉज करता है, कभी भी आपकी एनिमल में कॉज नहीं करता है, एंड इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ आरएनए होता है. देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर करती हूँ. मैंने आपको बताया वायरस क्या होता है, ये बेटा आपका आरएनए और डीएनए हो सकता है, एंड ये आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही डिजीज कॉज करता है. ठीक है, मैंने आपको ये बताया. एंड ये आपका स्मॉलर देन क्या है? आपका स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, राइट? मैंने यही बताया आपको. अब हम आ जाते हैं वायरॉइड्स में, कि वायरॉइड्स में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं वायरस एंड वायरॉइड्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है. सो देखिए वायरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर smaller than virus. Their whole body, they only consist of RNA and they only causes diseases to the plants. Okay, so ये आपके similarities हैं और ये आपके differences भी हैं. वायरस एंड वायरस में डिफरेंस इतना है, जो वायरस है दे आर द स्मॉलर देन द योर वायरसेस. इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ आरएनए होता है, एंड ये सिर्फ आपके प्लांट्स को डिजीज कॉज करते हैं, और दे डू नॉट हैव द प्रोटीन कोड. मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था कि जो वायरस होते हैं उनमें उनके आरएनए या डीएनए के ऊपर एक कोट होता है कैस्पोमियर्स का, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं. लेकिन अगर मैं वायरॉइड्स का बात करूं बेटा, तो इनमें क्या होता है? इनमें सिर्फ इनका आरएनए होता है. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इनके ऊपर कोई भी कैस्पोमियर की कोटिंग नहीं होती है, इनमें सिर्फ आरएनए होता है. ये एक रीजन है आपके डीएनए वायरॉइड्स का लो मॉलिक्यूलर वेट होने का एंड वायरस से और साइज में और छोटा होने का. ठीक है, it was discovered by Theo Diner in 1971 in potato spindle tuber disease में हमने पहली बार देखा था. He found that it caused potato spindle tuber disease. बेटा ये आपका स्ट्रक्चर होता है वायरॉइड का. ये आप अगर देखेंगे ये आपके स्ट्रक्चर है एक माइक्रोस्कोप के अंदर. ये क्या है? दिस इज द formation of a spindle tube in a potato which is caused by the viroids. So पहली बार जो आपके टीयू डाइनर है इन्होंने किसमें ऑब्जर्व किया था? इन पोटैटो. और क्या डिजीज कॉज किया था? इट वाज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. यहाँ से हमें पता चला था इन द ईयर
1971 that there is something called viroids which can infect the plants, like, and it was the very first time we have observed in the potato in the form of the spindle tuber. Okay, so ये आपको याद रखना होगा. अब हम आ जाते हैं, these are abnormal. Okay, viroids. अब हम आ जाते हैं prions पे. आपने देख लिया अबाउट द वायरसेस एंड द वायरस. आई होप आपको अब दोनों के बीच में डिफरेंस का क्लियर हो गया. अब हम आते हैं बेटा prions पे. prions इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस एंड द वायरस. हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, आपको पता है रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है. रेप्लिकेशन में डीएनए टू डीएनए आपका फॉर्म होता है. ट्रांसक्रिप्शन में आपके डीएनए से आपका आरएनए फॉर्म हो रहा होता है. आरएनए से जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है बेटा, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. राइट, ये सब आपके डीएनए में हो रहा होता है. अब क्या होता है कि ट्रांसलेशन के टाइम जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो सिंथेसाइज हो गया, ट्रांसलेशन जैसे ही आपका खत्म हो जाता है वैसे ही आपका फंक्शनल हो जाता है प्रोटीन. नहीं बेटा, उसके बाद आपके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. डीएनए आपकी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है. ओके, मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपके प्रोटीन के 3 प्रोसेस होते हैं जो कि आपका मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. सो आपकी जब तीनों जब जब प्रोटीन सिंथेसिस के बाद आपके ये तीनों, पहले तो आपका प्रोटीन जाता है अंडर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन द टर्शियरी. जब वो टर्शियरी भी फोल्डिंग कंप्लीट कर लेता है या मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आपका सेल क्या करता है, वो प्रोटीन को बाहर भेजता है और उसके बाद वो अपने टारगेट लोकेशन पे जाता है. ओके, यहाँ तक समझ में आया. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपके कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि जो मिसफोल्डेड रह जाते हैं और ये मॉडिफिकेशन के पार्ट नहीं हो पाते हैं. कुछ भी आपकी मशीनरी में कोई भी फॉल्ट हो गया, कुछ भी एरर हो गया, ऐसे कंडीशन में जो आपके मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं वो आपके कहलाते हैं prions. ओके, अब क्या होता है, सी, अब वो आपकी बॉडी में जाके क्या करते हैं बेटा, आपकी बॉडी में जाके डिजीजेस कॉज करते हैं, डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं. ऐसे मिसफोल्डेड प्रोटीन को हम prions बोलते हैं. Okay, so prions are abnormally folded protein that cause some infections, neurological diseases. These are similar in size to viruses. They cause bovine spongiform encephalopathy, that is BSE, or mad cow disease in cattle, and its analogous variant is CR-Jacob disease in humans. बेटा, कहने का मतलब ये है कि जो आपके prions होते हैं वो अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन हो गए, अगर बेटा सब कुछ अच्छा चला, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, बॉडी के आपके सेल ने बाहर भेज दिया, अपने टारगेट लोकेशन पे चला गया, इट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. बट इन द केस अगर आपका मिसफोल्डेड हो गया तो न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है. जैसे ये चीज हमने कैटल में, लाइक कैटल आपके काउ बफेलो में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है कि ये क्या कॉज करता है, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉज करता है, जिसे हम जनरली मैड काउ डिजीज बोलते हैं. ये जो आपको काउ दिख रही है, देखो ये थोड़ी सी, अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लग रहा है, राइट. सो इंसेफेलोपैथी का मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेन. ओके, सो इसको हम, आपके जो प्रयास होते हैं अगर वो मिसफोल्डेड है, ब्रेन में जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं. अगर वो कैटल में फॉर्म कर रहे हैं तो इसे काउ मैड डिजीज बोलेंगे. एंड अगर ये ह्यूमन में कॉज कर रहे हैं, अगर किसी ह्यूमन को बेटा आप इस, इफ यू लुक इनटू दिस पेशेंट, ही इज सफरिंग फ्रॉम द CR-Jacob डिजीज. ओके, सो क्या होता है बेटा, अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन या प्रयास की वजह से किसी पर्सन को, किसी ह्यूमन बीइंग को अगर आपका क्या प्रयास में कोई डिजीज कॉज करता है तो हम क्या बोलेंगे, उसे CR-Jacob डिजीज बोलेंगे. अगर कैटल में करता है तो उसे हम काउ मैड डिजीज बोलेंगे. ओके, वेरी सिंपल. ये आपका वायरस एंड वायरस दोनों से थोड़ा अलग है. prions इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. कैसे बेटा, prions में आपका क्या आ रहा है, P आ रहा है, P आ रहा है. P में जो आपका P स्टैंड करता है, दैट स्टैंड फॉर द प्रोटीन. तो अगर
आपको इजी है याद रखना कि इंस्टेड ऑफ प्रोटीन यू हैव टू रिमेंबर इट इज अ मिसफोल्डेड प्रोटीन। अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा आपकी बॉडी में तो क्या होगा, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करेगा। अगर आपकी कैटल में करते हो तो उसे काउमैट डिजीज बोलेंगे, और अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग में कॉज करते हो तो उसे हम सिया जेकब डिजीज बोलेंगे। ओके, उसके बाद बेटा हम आते हैं लाइकेंस में। लाइकेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट, फंगाई वाले पोर्शन में मैंने आपको लाइकेंस के बारे में बताया था। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गे एंड द फंगाई that is called as a lichen. See, they are lichens are symbiotic association, right, between your algae and fungi. Okay, the algae component is called phycobiotin and fungal component is mycobiotin. बेटा ये आपको याद समझने की जरूरत है, याद क्या रखना है। फाइकोबायोटिन का मतलब ऑटोट्रॉफिक होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, और आपका फंगाई होता है बेटा वो आपका हेट्रोट्रॉफिक या क्या कहलाता है बेटा, आपका माइक्रोबायोट कहलाता है। ओके, उसके बाद आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, जो आपका एल्गी होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, एंड जो आपका फंगाई होता है बेटा वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो आपके एल्गी को शेल्टर मिल रहा है और आपकी फंगाई को फूड मिलता है। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। मैंने आपको बताया था कि जो आपके लाइकेंस होते हैं वो बेटा, आपको लाइकेंस का स्ट्रक्चर दिखाऊं, सी हियर इट इज, सेम डायग्राम आई थिंक मैंने फंगाई वाले इसमें भी डाल रखा था स्लाइड में। हियर यू कैन सी दिस, ओके, दिस इज द वन। क्या होता है बेटा, अगर कहीं पे आपको लाइकेंस दिखे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत एक नॉर्मल सी बात है, बहुत जनरल कॉमन सेंस की बात है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, लाइकेंस के बारे में पढ़ रहे हो, जो उस एरिया में जो आपका पोल्यूशन लेवल है वो काफी कम है, जो आपका लाइकेन होता है इनका प्रेजेंस खुद में बता रहा होता है कि दे आर द ग्रेट एयर प्योरीफायर। ओके, so we till here we have studied about your all the three kingdoms and about your viruses, viroids, prions and lichens. I hope आपको सब समझ में आया रहेगा।